व्हाट इज इंडियन सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स एंड द इंटरनेशनल सिस्टम, इन दोनों सिस्टम में कॉमन क्या था? दे यूज द डिजिट्स और द सिंबल्स फ्रॉम 0, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ये 10 डिजिट्स और सिंबल्स को यूज करके वी कैन फाइंड इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ नंबर्स. Okay, so this was the base, this symbols were the base for the Indian system and the international system. अब देखते हैं the new concept which is Roman numbers. What are these Roman numbers? Ancient people of Roman के जो पुराने जो लोग थे ना, उन्होंने एक सिस्टम डिराइव किया था for representing numbers. It consists of these values given in the board. A symbol like this was used to denote 1. A symbol like this was used to denote 5. X was representing 10. L representing 50. C representing 100. D representing 500. And M representing 1000. So instead of this 10 symbols, they use these symbols to write any number. How they use this symbol? Let us understand that in detail. For that, we have to understand the rules. There were certain rules while writing these numbers. So we will understand this rule one by one. Basically, what was the thing? This numbers, this alphabets or symbols were used to denote the numbers, not the symbols which was 0 to 9. So let us see the first rule. The first rule for writing Roman numbers is that the smallest value on the right should be added. Means what? Let us understand that with example. Right means what? My right is this side, right? So if I say in में से, suppose I take this 5, I'll write a 5 and उसके right side पे मैं ये 1 लिखती हूँ, right? So इसका value क्या है, मुझे ये find करना है. So going with the lines, read it. Smaller value which is 1, ये 1 छोटा है, right? 5 से, means what? 1 is smaller than 5. तो smaller value on the right side should be added. Means what? इन दोनों को add करना है. So what I will do? ये क्या represent करता है? 5. And what does this represent? This represents 1. So I write 5 plus 1 which is equal to 6. So the value of this is what? 6. Let us take some example, another example which is this. I'll write like this. अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर? सो व्हाट आई विल डू, गोइंग विद द रूल, राइट हैंड साइड में अगर कोई छोटा वैल्यू है, रिमेंबर छोटा वैल्यू, तो वो ऐड होगा. ये x क्या रिप्रेजेंट करता है? x रिप्रेजेंट्स 10. सो आई राइट 10 प्लस, फिर ये एक दूसरी डांडी है उसके बाजू में, अनदर 1 व्हिच इज दिस, राइट? सो दिस इज व्हाट 1. सो आई राइट 1 प्लस और एक है, राइट? So or एक plus 1 which comes to what? 12. So this denotes 12. So the first rule says that कि अगर कोई छोटा वैल्यू बड़े वैल्यू के राइट हैंड साइड में है तो वो ऐड होगा. जैसे कि ये 5 को मैंने ये 1 ऐड कर दिया, ये 10 को मैंने और 2 ऐड कर दिए क्योंकि 2 1 है, which comes to 12. So clear with the first rule. Now let us move on to the next rule. The second rule. The second rule says that smaller value, छोटा value on the left side, that is this side, should be subtracted. Subtracted मतलब क्या? माइनस करना है. मतलब अगर कोई भी वैल्यू मेरे इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, छोटा वैल्यू बड़े वैल्यू के लेफ्ट साइड पे है, तो उसको क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. अब मुझे फाइंड करना है इसका वैल्यू क्या है. तो पहले तो मैं बड़ा नंबर देखूंगी इन दोनों में से. बड़ा कौन सा है? लुक ओवर हियर, इट इज 5 which is represented by a V and 2 parallel lines above it. So this is what? 5. फिर देखना है छोटा वैल्यू किधर है. छोटा वैल्यू है कि नहीं? Yes, there is 1. So 1 is smaller than 5, right? So 1 right hand side में है कि left hand side में है? That I have to see. See, it is on the left side. And what does the rule say? Left side में अगर smaller value है तो what it should be done? It should be subtracted. तो ये वैल्यू को मैं इससे माइनस करूंगी, which comes to what? 4.
मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज व्हाट 4. रिमेंबर यहाँ पे छोटा वैल्यू बाद में था, राइट? तो हमने ऐड किया. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. इसका मतलब 6 होता है क्योंकि ये 5 को ऐड हो जाता है. गेटिंग? एंड इसका मतलब ये होता है कि ये 4 है. व्हाई 4? बिकॉज ये 5 में से ये 1 सबट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि वो पहले है. सो सीक्वेंस इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो मैटर्स. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. फॉर सपोज दिस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर? कैसे फाइंड करूंगी मैं? दिस इज व्हाट 10. उसके लेफ्ट हैंड साइड में है 1, राइट? सो अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है. तो बड़ा वैल्यू कौन सा है इसमें? द बिगर वैल्यू इज 10. सो आई सबट्रैक्ट द नंबर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड which is 1. So from 10 I'll subtract 1 which comes to 9. So there is a difference between this and this. Sequence in this also matters. अगर छोटा वैल्यू राइट साइड में है तो ऐड होगा, छोटा वैल्यू लेफ्ट साइड में है तो सबट्रैक्ट होगा. So clear with this first two rules? Lot of students waste their precious time watching cartoons, movies, reality shows on TV. Then they waste their time on social networking sites. When the students sit to study, they are unable to concentrate to get your studies finished, and they get low marks in exams. Parents shell out tons of money from their pockets for coaching classes. But who knows what is taught in these classes? Teachers at times get bugged up when you ask them questions. YouTube has a lot of information but little of use. This is where Study Spectrum TV channel comes in picture. Every chapter explained by different teachers with different examples and repeat telecasts. We remember 20% of the audio ads we hear, 30% of the printed items we see. But we remember 70% of the audio visuals. That is why video teaching is a powerful medium to learn. After watching Study Spectrum TV channel, you get a peaceful sleep with no tensions and no worries. You devote less time towards your studies and you get better marks in your exams. Visit us on www.studyspectrum.com. Follow us on Facebook. So what are you waiting for? Subscribe for Study Spectrum TV channel and keep edifying. Now let us move on to the next rule, which is rule number 3. What does this rule say? This 1, Roman 1, this Roman 10, C which represents 100 and M which represents 1000 cannot be used more than 3 times. मतलब what? You can write them maximum 3 times. 3 times से ज़्यादा you cannot write it. For example, let us take an example of this one. मैं इसको 3 बार लिखती हूँ, right? So इसका वैल्यू कितना होगा? See, this represents 1. So 1, 2, 3. इसका वैल्यू 3 हो गया, right? और इसमें बोला है कि 3 बार से ज्यादा बार इसको तुम एक साथ नहीं लिख सकते. अगर 1 मैं ले रही हूँ तो 1 को 3 टाइम से ज्यादा मैं रिपीट नहीं कर सकती. बट देन 3 तो हो गया, 4 कैसे लिखूंगी मैं अभी? बिकॉज फॉर 4 आई नीड 4 1 like this, right? But the rule says कि I cannot write 4 like this. So how I will write this 4? I'll write it like this. Why like this? Because the first rule what it says, नहीं, the second rule what it says कि अगर बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में छोटा नंबर होगा तो वो माइनस होगा. So let us check इसका आंसर 4 आता है कि नहीं. The bigger number which is this V sign which represents 5. So 5 को मैंने लिख दिया और ये 1 5 के कौन सा साइड में है? लेफ्ट साइड में. और सेकेंड रूल हमें क्या बोलता है? अगर छोटा वैल्यू लेफ्ट में होगा तो उसको क्या करना है? माइनस करना है. तो मैं 5 में से ये वाला 1 माइनस कर दूंगी. सो आंसर व्हाट आई गेट इज व्हाट? 4. मीन्स व्हाट? यू कैन नॉट यूज दिस सिंबल मोर देन 3 टाइम्स. यू हैव टू फाइंड एनी अदर अल्टरनेटिव टू गेट द नंबर. लाइक 4 मैंने कैसे लिया? 5 minus 1. Now let us take another example.
मेरे को 40 लिखना है, राइट? आई हैव टू राइट 40, बट हाउ आई विल राइट 40? सो मैं 10 को 4 टाइम्स लिखती हूँ. इज दिस राइट? नो, बिकॉज इसमें क्या है, ये 10 को भी तुम सिर्फ 3 बार लिख सकते हो. मैंने तो 4 बार लिखा, बट अगर मैं 3 बार लिखूंगी तो उसका आंसर क्या आएगा? 10 + 10 + 10 30 आता है, राइट? बट मुझे कितना चाहिए? 40. तो मैं 40 कैसे लिखूं? सिंपल एज दैट. यहाँ पे देखना है 50 का वैल्यू कौन सा सिंबल यूज कर रहा है. L मीन्स 50, तो मैं क्या लिखूंगी? पहले तो L लिखूंगी, ठीक है? L लिखा 50 होता है. अब मुझे 50 नहीं चाहिए, मुझे 40 चाहिए. मतलब 50 में से कितना निकाला तो 40 मिलेगा? 50 - 10 = 40. तो मैं क्या करूंगी? 50 में से 10 निकाल दूंगी. अगर मुझे 50 में से 10 निकालना है तो मैं क्या करूंगी? मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगी, बिकॉज द सेकंड रूल व्हाट इट सेज, if a smaller number is written to the left of the greater number, it is subtracted. तो ये बड़ा नंबर है, इसके मैं लेफ्ट साइड में अगर छोटा नंबर लिखूंगी तो वो माइनस होगा. सो आई राइट 10 over here. 10 means what? this. So इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा 40. Why 40? बिकॉज ये बड़ा वाला नंबर का वैल्यू क्या है? 50 माइनस, क्योंकि छोटा वैल्यू उसके कौन सा साइड में? लेफ्ट साइड में. और रूल सेकंड हमें बोलता है कि लेफ्ट साइड में इफ देयर इज अ स्मॉलर नंबर इट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर नंबर. सो ग्रेटर नंबर इज 50, स्मॉलर नंबर इज 10, सो 10 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 50. सो 50 - 10 comes to what? 40. So the right way to represent 40 is what? XL. So clear with the third rule. Now let us move on to the fourth rule. Let us see what this rule says. 5 over here in Roman, L which represents 50, D which represents 500. Okay? अभी ये 3 symbols का क्या condition है? Let us see that. Are not to be repeated. मतलब इनको repeat नहीं कर सकते हो तुम लोग. Like if I say 3 को मैं कैसे लिखती थी? Like this, right? 3 times 1 which is equal to what? 3. So I have repeated this one, right? But the fourth rule says what? This 500 and this 5, 50 and 500 cannot be repeated in Roman. इसको मैं बार बार नहीं लिख सकती. Means I cannot write it like this. 10 ऐसा मैं 10 नहीं लिख सकती. What I have to write is what? 10. Getting 50. This is what? L. तो मैं LL भी नहीं लिख सकती. L का वैल्यू कितना है? 50. मुझे अगर 100 लिखना है तो मैं 2 बार L नहीं लिख सकती कि 50 + 50 100. What I can write is C. Instead of 100 I can write C. So getting these 3 numbers, that is 5, 50 and 500 cannot be repeated. ये रिपीट हो सकता है, ये रिपीट हो सकता है, ये रिपीट हो सकता है एंड ये रिपीट हो सकता है. But 5, 50 and 500 cannot be repeated. मीन्स सिंपली इसको रिमेंबर अगर करना है तो सर सिंपल थिंग इज, जिसमें भी 5 आता है ना वो रिपीट नहीं होगा. यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये रिपीट नहीं होगा. यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये भी रिपीट नहीं होगा. यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये भी रिपीट नहीं होगा. जिसमें 100, 10, 1000 आ रहा है वो सब रिपीट कर सकते हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल. ये जो यही अल्फाबेट्स है विच इज 5, 50 एंड 500 नॉट ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब तुम इसको किसी भी नंबर से माइनस नहीं कर सकते. ये जो नंबर है वो बड़े वाले नंबर के लेफ्ट साइड में नहीं आ सकते क्योंकि ये माइनस नहीं, मतलब ये माइनस नहीं होंगे. लेफ्ट साइड में भी आएंगे तो ये ऐड कर सकते हो तुम, बट यू कैन नॉट सबट्रैक्ट दिस नंबर्स. सो ये लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है? दिस बेसिकली इंडिकेट्स कि इसको किसी नंबर से तुम माइनस नहीं कर सकते. यू कैन जस्ट ऐड दिस 3 नंबर्स, दैट इज 50, 500 and 5.
Now let us start with rule number 5. What does this rule say? The Roman 1 can be subtracted from 5 and 10 only. What is the meaning of only? Only means वो जो Roman का 1 है, it will be subtracted from 5 and 10 only, and not any other number, which is L, C, D and M, representing 50, 100, 500 and 1000. मतलब जो छोटा नंबर है 1, वो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं ताकि वो सब्ट्रैक्ट हो. वो सिर्फ किसके साथ जा सकता है? 5 and 10 के साथ, and not with any other number. Let us take an example to understand this better. Suppose 49. 49 को मैं कैसे लिखूंगी? I can write 50 minus 1, 49. तो ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, L और उसके बाजू में L, फिर L बड़ा है, L means what? 50, and 1 आ गया मतलब 50 minus 1 which comes to 49. But no, the rule says this is wrong. So how to write 49? See, L minus 10 लिख दिया मैंने, ठीक है. L minus 10 means what? L is 50. 50 minus 10, 40. अभी 40 हो गया, अभी मुझे क्या लिखना है? 9 लिखना है, तो मैं 9 लिख दूंगी. So this is what 49 is. ऐसे लिखा जाता है 49 को, and not this way. Means what? Simple as that. ये जो 1 है वो सिर्फ 5 के आगे आ सकता है, 10 के आगे आ सकता है, and not with any other number. It can be on the right hand side, but it cannot be left hand side and cannot be subtracted. For example, अगर मुझे 4 लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ. मुझे 9 लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ. बट मैं ये L, C, D और M के साथ नहीं कर सकती. So clear with the 5th rule. Now let us move on to the 6th rule. What does this rule say? X can be subtracted from L, C, M, D. ये जो L represents what? 50. C represents 100. M represents 1000 and D represents 500. Means what? ये जो X है ना वो subtract हो सकता है. जैसे कि हमने 49 में देखा, right? मैंने 40. Let us take 40. मुझे अगर 40 लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? I can simply write it as X L. Means what? 50 minus 10, which comes to what? 40. अभी कोई और नंबर लिखना है. सपोज यहाँ से 50 हो गया. Now I have to write 90. How to write 90? Simple as that. 100 means what? C. So मैं XC लिख दूंगी. Means what? C is 100. 100 minus 10, which comes to what? 90. Means what? X जो है वो सबके साथ, which is L, C, D and M, सबके साथ subtract हो सकता है, सबके left hand side पे आ सकता है. Now let us move on to the next rule, which is rule number 7. Symbol C can be subtracted from DM. मतलब क्या? ये जो C है, it can be subtracted from D and M. Why not the others? Obviously वो उनसे छोटे हैं तो उनसे माइनस नहीं कर सकते. माइनस किया तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा. रोमन नंबर्स कैनॉट बी नेगेटिव. मीन्स व्हाट? ये जो C है इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M, क्योंकि यही दो वैल्यू इससे बड़े हैं. C मीन्स व्हाट? 100, D मीन्स 500, M मीन्स 1000. तो ये जो 100 है वो सिर्फ 500 से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 1000 से सब्ट्रैक्ट हो सकता है. कैन इट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50? No, the answer will be negative. Means what? C can be subtracted from D and M only. Suppose this D का वैल्यू क्या है? Look over here. It is 500. So 500 and C का वैल्यू क्या है? It is
100. So 500 minus 100, which comes to 400. So 400 can be represented like this. Now n. What is the value of n? Look over here, it is 1000. So 1000 और उसके आगे c है, means minus 100, which comes to what? 900. So clear with 5th, 6th and 7th rule of writing Roman numbers. Now let us start with rule number 8. What does this rule say? If smaller number comes in between two larger values, it should be subtracted from the number following it. मतलब following it मतलब क्या? अब बोला है कि दो बड़े नंबर के बीच में अगर एक छोटा नंबर आ जाता है तो उसका जो बाद वाला नंबर है उससे उसको माइनस करना है. एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. सपोज इट इज लाइक दिस. दिस इज द रोमन नंबर गिवन टू यू. हाउ, मतलब इसको कैसे, ये अगर इसको मैंने इंडियन सिस्टम में करना है या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स में कन्वर्ट करना है, हाउ आई विल कन्वर्ट. पहले तो ये जो 1 है ये छोटा है, राइट. द रूल सेज कि स्मॉलर बिटवीन लार्जर वैल्यूज. ये बड़ा वैल्यू है 10 है, ये 5 है, इसके बीच में 1 आ गया जो छोटा वैल्यू है. 10 और 5 के बीच में एक छोटा वैल्यू है जो कि 1 है. तो कैसे सॉल्व करना है? तो ये 10 है, राइट. तो मैं लिखूंगी 10, एडिशन साइन, ये दूसरा 10. और रूल क्या बोलता है कि जो ये छोटा नंबर है ना उसको नेक्स्ट बड़ा वाला नंबर से माइनस करना है. तो यहाँ पे 1 के बाद वाला नंबर कौन सा है? 5. तो उसको 5 में से माइनस करना है. यू कैन नॉट से कि ये 10 है फिर ये 10 है फिर ये ऐड कर दूंगी मैं +1 +5. इसका आंसर क्या आएगा? 10 + 10 20, 25, 26. क्योंकि मोस्टली जो राइट हैंड साइड में आता है उसको हम ऐड करते हैं. बट द रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि अगर कोई बीच में एक छोटा नंबर आ जाता है ना तो उसके नेक्स्ट वाले नंबर से उसको माइनस करना है. तो यहाँ पे ये 10 को मैंने एज इट इज लिख दिया, ये 10 को लिख दिया, फिर ये 1 को मैं ऐड नहीं करूंगी, ये गलत है क्योंकि रूल क्या बोल रहा है? इसको माइनस करना है नेक्स्ट वाले नंबर के साथ. तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या है? 5. तो मैं यहाँ लिख दूंगी 5. ठीक है. अभी ये 1 5 के पहले आ रहा है तो उसको क्या करना है? सबट्रैक्ट, मतलब 5 में से मुझे उसे माइनस करना है. सो आई राइट 5 - 1. गेटिंग? फिर इसको सॉल्व करते चलो. 10 + 10 + 5 - 1 comes to what? 4. So the answer comes to what? 24. So clear with this. इसका वैल्यू क्या होगा? 24 and not 26. ये राइट हैंड साइड में 1 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सबको ऐड करना है. मोस्टली तो ऐसा ही होता है. बट द रूल क्या बोलता है कि कोई भी अगर छोटा नंबर बीच में आ जाता है ना तो उसको उसके बाजू वाले राइट हैंड साइड के बाजू वाले नंबर से माइनस करना है. इसीलिए हमने 5 में से ये 1 माइनस कर दिया, बिकॉज ये रूल नंबर 8 ऐसा बोलता है. अगर ये रूल नहीं होता तो व्हाट आई वुड डन, तो मैं ऐसे करती, ये 10 लिखती, ये 10 लिखती, ये 1 लिखती, ये 5 लिखती एंड द आंसर कम्स टू व्हाट? 24 और 26 अवर ईयर. बट रूल की वजह से आंसर क्या आया? 24, क्योंकि 1 माइनस करने बोला था हमें 5 में से. सो क्लियर विद द 8th रूल.